बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम. Dear students, today we will discuss about cache memory. Okay, so this is our today's lecture's agenda. That first of all we will pictorially show the memory hierarchy, that where the cache resides. Then after that we will discuss the cache mapping techniques, that which block of the cache is associated with which block of the lower memory, and then we will discuss the replacement strategies. If the cache is full, then which block should be replaced. Okay, so we will discuss the replacement strategies. Multiple replacement strategies will be discussed under this topic, and then we will discuss the writing mechanisms when results come from the CPU, and then how we can write this into the cache as well as into the lower memory. Okay, and after that we will discuss the cache optimization techniques, that what are the ways through which you can optimize the cache. Okay, enhance the performance of the cache. So let's move towards the pictorial representation or the memory hierarchy. Okay, so in memory hierarchy, at the top of the memory hierarchy CPU registers resides. After that the number of cache occurs, and then main memory reside, and below the main memory secondary memory resides. Okay, so CPU registers, we have already discussed that the CPU registers is the most fastest memory as compared to other memory and the most costly memory. Okay, and the cost and speed of the CPU is more or greater than as compared to other lower memories. Okay, while the size of the CPU register is low. Okay, so when we go to the downwards direction, size increases, while when we goes to the upward direction, the cost and speed per unit cost and speed increases. Okay, so CPU registers are the most fastest and most costly, while the lowest in size. Okay, then the number of cache occurs. Cache is occur between the RAM, main memory, and the CPU registers. Okay, so the size of the cache is lower than the main memory, while as compared to CPU registers, the size of the cache is greater. The speed of the cache as compared to RAM is more, and the cost per unit cost is also greater than the RAM memory, while the speed and cost as compared to CPU registers is less. Okay, there are multiple levels of the cache: level 1 cache, level 2, level 3 cache. All these are on chip memory. Cache memory and CPU registers are on chip memory. Okay, and the cache, main memory, and CPU registers, CPU can directly access the data from these memories, from the registers, from the cache, and from the RAM. While the data present in these locations, CPU registers or the cache or the memory, is temporary. Okay, when the current goes gone, all the data present in these memories will be lost. Okay, so main memory is further divided into physical RAM and virtual memory. What is virtual memory? When part of the secondary memory is used as a RAM. Okay, so this is called the virtual memory. So in this slide we just discussed that where the cache memory resides. So cache resides between the CPU registers or the CPU and the main memory, and there are multiple levels of cache: level 1 cache, level 2 cache, and level 3 cache. Okay, so these levels also affect the performance of the cache. When as we have discussed in the principle of locality, that the data that is near to the CPU will be accessed in less time as compared to the data that is far away from the CPU. So there are two concepts of principle of locality. One is the spatial locality and the other one is the temporal locality. So cache
the concept of cache comes due to both of these concepts. Spatial locality means the data that is present to near to the CPU will be accessed in less time, or the speed will be higher. So cache is in between the CPU registers and the RAM, so its speed is higher as compared to the RAM. And another one is the temporal locality. So the temporal locality means that the data that is recently used, maybe this data is used in the near future. So cache holds the data that may be used in the near future. Okay, so this will enhance or speed up the performance of your system. Okay, in this slide just we understand that where the cache resides and how it will affect the performance of your system. Okay, now let's move towards the cache mapping techniques, that which page or which block of the memory should be mapped with which block of the cache. So there are three techniques used for the mapping. One is called the direct mapping, another one is called set associative, and the third one is called fully associative. In direct mapping techniques, when a block from the RAM is placed in a block into the cache memory, so what is the mechanism? Say for example, this is the size of the cache and this is the block of the RAM that we want to place in which block of the cache. So we will take mod of this and size of the array. जब हम 12 का mod लेंगे रिमाइंडर ऑफ 8 पे, जब हम साइज़ ऑफ द कैशे पे डिवाइड करेंगे, तो इसके बाद जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, वट एवर द रिमाइंडर इज़, वी विल प्लेस दैट ब्लॉक. से फॉर एग्जांपल block 12 will be placed in block number 4 of the cache. Block number 12 of the RAM will be placed in block number 4 of the cache. Okay, so this technique is called direct mapping technique. What are the disadvantages of this direct mapping technique? Say for example, if we want to store block number 4 of RAM, so where the block number 4 will goes into cache. So 4 mod 8, again this will result into 4. Well, in direct mapping techniques, the fourth location, block number 4, is already occupied by the block number 12, so we cannot place this block number 4 in direct mapping, although we have 7 blocks empty in this case. Okay, अब हमारे पास 7 blocks empty है, लेकिन फिर भी हम इस block number 4 को हम इन blocks में जो है इसको मैप नहीं कर सकते. ठीक है, और डायरेक्ट मैपिंग का ये मेन डिसएडवांटेज है. तो इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए सेट एसोसिएटिव टेक्निक को कॉन्सेप्ट आ गया. व्हाट इज सेट एसोसिएटिव मींस? इट मींस दैट 12 mod 4 shows set numbers. Okay, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 set number 0. तो set number 0 को आपने block number 1 और block number 0 को आपने set number 0 कह दिया. block number 2 और 3 को आपने set number 1 कह दिया. 4 और 5 को आपने set number 2 कह दिया, और जो आपके पास 6 and 7 है उसको आपने set number 3 कह दिया. अब this shows the total number of sets, and this is the block that we want to place in cache. Okay, so 12 mod 4, 12 is the block of the cache that block of the RAM that we want to be to place in the cache. Okay, and this 4 is the total number of sets. Okay, so 12 mod 4, this result is 0, the remainder is 0, so block number 12 will be placed at 0 block. Okay, and set number 0 and block number 0. Now we want to place block number 4 of the RAM into which block of the cache? So 4 mod 4, again this will results to 0. So 0, again block number 4 will goes to set number 0, and set number 0, the 0 block is already occupied by block number 10, so 4 will goes to block number 1 of set number 0.
ओके। सो जिन भी 2 नंबर का मॉड या 2 ब्लॉक का मॉड सेम आता है, हम उसको उसी सेम सेट में जो है उसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो दिस मिनिमाइज द डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मैपिंग, बट स्टिल अगर आपके पास सेट फुल हो गया, व्हेन द सेट इज़ फुल यू कैन नॉट प्लेस another or map another block in that set, ओके। तो अगेन उसमें सेट एसोसिएटिविटी में एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस है। सेट एसोसिएटिविटी में आपने 2 ब्लॉक्स का सेट लिया, आप 4 ब्लॉक का भी सेट ले सकते हैं, आप n ब्लॉक का भी सेट ले सकते हैं, आप 8 ब्लॉक का भी सेट ले सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं 2-वे सेट एसोसिएटिव, 4-वे सेट एसोसिएटिव, 8th-वे सेट एसोसिएटिव, n-वे सेट एसोसिएटिव टेक्निक्स, ओके। तो आप मल्टीपल ब्लॉक्स का जो है सेट बना सकते हैं। इन फुली एसोसिएटिव आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यू डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शन कि कौन सा ब्लॉक कौन सी लोकेशन पे जाए। से फॉर एग्जांपल 12 है और 12 mod 8 आपने ले लिया, उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है वो 4 है, तो आपने 12 को 4th लोकेशन पे प्लेस किया। अब अगेन अगर आपके पास 4 mod 8 है, द रिज़ल्ट इज़ 4, तो आप उसमें से 4 की बजाय 4th लोकेशन ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो आप इसको 5th लोकेशन पे 5th ब्लॉक पे भी प्लेस कर सकते हैं, अप टू सो ऑन। जब भी आपके पास व्हेनेवर यू हैव place empty block in the cache, you can use it for whatever the mod is or whatever the reminder is. So in fully associative your कैशे इज़ यूटिलाइज्ड फुली। आपके पास फुली एसोसिएटिव में जो आपकी कैशे है वो फुली यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन इसके ड्रॉबैक ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग। सेट एसोसिएटिव मैपिंग में या डायरेक्ट मैपिंग में आपके पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन आसान है, जबकि फुली एसोसिएटिव में आपने जब एक्सेस करना है कि कौन सा ब्लॉक जो है कौन से ब्लॉक में पड़ा हुआ है, तो इसको करने के लिए आपको अलहदा से एक जो है टेबल मेंटेन करना पड़ेगा। तो उस टेबल के मेंटेनेंस पे जो आपके पास उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, उसके लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड है, तो वो एक्स्ट्रा बर्डन है, ठीक है। तो फुली एसोसिएटिव आपके पास मेमोरी तो कैशे मेमोरी इज़ फुली यूटिलाइज्ड बट द इम्प्लीमेंटेशन इज़ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इनके दरमियान जो है आपकी ऑप्टिमाइजेशन है कि कौन सी एसोसिएटिविटी यूज़ करनी है और किस तरह से करनी है, तो वो हम कैशे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर आपने किसी स्पेसिफिक ब्लॉक नंबर या स्पेसिफिक डेटा को चेक करना है कि डेटा है या नहीं, कि डेटा कैशे में है कि नहीं, तो उसके लिए 2 टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होते हैं। वन इज़ कॉल्ड द कैशे हिट एंड अनदर वन इज़ कॉल्ड कैशे मिस। So what is means by hit or miss, cache hit or cache miss? Cache hit means when the required data of the CPU is present in the cache, this is called cache hit. And when the required data is not present in the cache and you have to load it from the RAM or secondary memory, this is called cache miss. When the data is not present in the cache, the required data of the CPU is not present in the cache, this is called cache miss. And another one is called cache hit, when the required data of the CPU is present in the cache, okay. So how it will check that the cache hit occur or the cache miss occur? So there are 2 portions, okay. इसको करने के लिए आपके पास 2 portions है, one is called block address and the another one is called block offset. Say for example आपके पास 0 है, तो 0 ब्लॉक का एड्रेस क्या है, ठीक है, और ऑफसेट क्या है। ऑफसेट उस स्पेसिफिक जो रिक्वायर्ड डेटा है उसकी मैपिंग है, मैचिंग है कि द लोकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड डेटा, कि आप ब्लॉक 0 में कौन सी लोकेशन पे है। इस एड्रेस में ब्लॉक 0 का जो भी एड्रेस है, तो इस एड्रेस से कितने इसमें जो भी ब्लॉक है, इस ब्लॉक में कौन सी लोकेशन पे है, विच लोकेशन, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफसेट इज़ द स्पेसिफिक or the required information at the specific location, okay. तो ब्लॉक एड्रेस को फर्दर डिवाइड किया गया है इस पोर्शन को 2 हिस्सों में, वन इज़ कॉल्ड द टैग एंड अनदर वन इज़ कॉल्ड इंडेक्स। जो आपके पास फुली एसोसिएटिव टेक्निक है तो उसमें से इंडेक्स नहीं होता, ब्लॉक एड्रेस इज़ होली सोली द टैग,
ब्लॉक एड्रेस जो है उसमें सिर्फ टैग ही होता है, इंडेक्स नहीं होता। जबकि आपके पास डायरेक्ट मैपिंग है या सेट एसोसिएटिव है तो सेट एसोसिएटिव में आपके पास इंडेक्स भी होता है। ब्लॉक एड्रेस क्या है कि उसमें आपके पास टैग है। तो टैग आपके पास क्या है कि टैग आपके पास जिसको आपने कंपेयर करना है उस रिक्वायर्ड डेटा के साथ कि वो रिक्वायर्ड डेटा आपके पास है कि नहीं। दिस इज़ कॉल्ड कि आपके पास जो हिट की या मिस की जो डिसीजन है दिस इज़ डिपेंड अपॉन द टैग वेदर द कैशे हिट अकर और द कैशे मिस अकर। व्हाट इज़ इंडेक्स, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो आपके पास फुली एसोसिएटिव मेमोरी है सो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स इन फुली एसोसिएटिव। लेकिन इंडेक्स आपके पास क्या है कि ब्लॉक एड्रेस जो टैग हमने कर दिया वो तो हिट और मिस के लिए यूज़ हो गया। जो इंडेक्स है कि आपके पास डेटा है तो कौन सी इंडेक्स पे है, 0 पे है या 1 पे है, ठीक है। आपके पास कौन से ब्लॉक नंबर भी आपने स्पेसिफाई किया और आपके पास ऑफसेट भी हो गया, ठीक है। तो आपके पास अब कौन सी इंडेक्स पे है, कौन सी लोकेशन पे है, कौन सी नंबर पे है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास यूज़ होता है इंडेक्स, ठीक है। तो इसके लिए है। तो फुली एसोसिएटिव कैशे हैव नो इंडेक्स फील्ड। फुली एसोसिएटिव कैशे में इंडेक्स फील्ड नहीं होता। ब्लॉक एड्रेस इज़ ओनली टैग। ओके, तो ये हम आगे पढ़ेंगे हिट और मिस, कैशे हिट और कैशे मिस किस तरह से ये होता है, ठीक है। अब नाउ अगेन वी हैव टू डिस्कस द रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज़। आपके पास कैशे जो है वो फुल हो गया, कैशे में जितने भी लोकेशंस थे वो फुल हो गए और आपने जो रिक्वायर्ड डेटा है वो रैम से लोड करना है, ठीक है, या लोअर मेमोरी से लोड करना है। सो विच ब्लॉक ऑफ द कैशे विल बी रिप्लेस्ड, ठीक है। कैशे तो आपके पास फुल है और आपने उसमें फर्दर जो है डेटा लोड करना है, कौन सी पेज को रिप्लेस कर दिया जाएगा उस स्पेसिफिक पेज के साथ। सो these are called the replacement strategies. There are multiple ways. One is called the first in first out mechanism, FIFO replacement strategy. In FIFO replacement strategies the block that comes first will be replaced first. ओके, जो ब्लॉक सबसे पहले आया है, से ब्लॉक नंबर 4 जो है, ब्लॉक नंबर 4 जो 12 है जिसको ब्लॉक नंबर 12 असाइन हुआ है, ठीक है, वो पहले आया हुआ है और बाकी ब्लॉक्स जो है वो बाद में आए हुए हैं। अब अगर एक नए ब्लॉक से फॉर एग्जांपल 13 की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, 13 ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है तो इसको हमने क्या करना है, इसको लोड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले 12 ब्लॉक को रैम में जो 12 ब्लॉक था, ठीक है, 12 ब्लॉक, तो उसको उसके कंटेंट्स को कैशे से निकाल के उस स्पेसिफिक ब्लॉक में ट्रांसफ़र करना, ठीक है, और उसकी जगह 13 वाले ब्लॉक्स की जो कंटेंट्स है उसको रिप्लेस करना। दिस इज़ कॉल्ड रिप्लेसमेंट। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट द ब्लॉक that is occupied or mapped first, okay, that will be replaced. okay, जब भी आपके पास कैशे फुल हो गया और एक नए ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है जो रिक्वायर्ड डेटा है प्रोसेसर को, ठीक है, उसको ज़रूरत पड़ती है तो ये कैशे में कौन से ब्लॉक को रिप्लेस करेगा, जो ब्लॉक पहले आया है। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो ब्लॉक सबसे कम यूज़ हो रहा है, ठीक है, कम यूज़ हो रहा है। से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ब्लॉक नंबर 12 पहले आया है लेकिन ये ब्लॉक जो है ये बार बार यूज़ हो रहा है और से फॉर एग्जांपल एक अनदर ब्लॉक से फॉर एग्जांपल 13 ब्लॉक, ठीक है, वो बाद में आया है लेकिन ये अभी यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, लीस्ट रिसेंटली यूज़ सबसे कम यूज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉक। बाकी ब्लॉक्स की निस्बत दिस ब्लॉक 13 इज़ यूज्ड मिनिमम, ओके, कम से कम, एटलीस्ट जो कम से कम यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ये ब्लॉक 13 जो है ये रिप्लेस हो जाएगा विद द न्यू ब्लॉक। जो ब्लॉक सबसे कम यूज़ हो रहा हो, से फॉर एग्जांपल 12 पहले आया हुआ है लेकिन ये से फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स यूज्ड भी हुआ है, प्रोसेसर ने इसको यूज़ किया हुआ है, ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो ये ब्लॉक अब
रिप्लेस नहीं होगा, इसकी जगह दूसरा ब्लॉक जो कि से फॉर एग्जांपल 13 ब्लॉक नंबर है और वो जो है वो आया है लेकिन अभी तक यूज़ नहीं हुआ, ठीक है, तो इस ब्लॉक को रिप्लेस कर दो। अगर कोई और ब्लॉक हो तो उसको रिप्लेस कर दो। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड या मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। मोस्ट रिसेंटली यूज्ड ये ज़्यादातर यूज़ नहीं हो रहा है, और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, ठीक है, ये मैकेनिज़म्स भी रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ नहीं होते। क्यों? बिकॉज दीज आर अगेंस्ट द टेम्पोरल लोकेलिटी, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, ठीक है। जो टेम्पोरल लोकेलिटी का कंसेप्ट है उससे ये कोलाइड करता है। मोस्ट रिसेंटली यूज जो ब्लॉक अभी अभी यूज़ हो रहा है, और हमने टेम्पोरल ऑफ लोकेलिटी में क्या कहा था कि टेम्पोरल लोकेलिटी ये है कि जो ब्लॉक अभी अभी यूज़ हो रहा हो, मे बी इन द नियर फ्यूचर उसकी दोबारा से ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो टेम्पोरल लोकेलिटी मोस्ट रिसेंटली यूज जो अभी अभी यूज़ हो गया इसको रिप्लेस कर दो, तो ये अगेंस्ट द टेम्पोरल लोकेलिटी। या मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज जो डेटा सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा हो उसको रिप्लेस कर दो। तो जो डेटा आपका ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसको आपने रिप्लेस कर दिया, तो आपने ऑप्टिमाइजेशन की बजाय आपकी परफॉर्मेंस इनहेंस होने की बजाय डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस पे बैड इफ़ेक्ट हो गया, क्योंकि आपने इस पेज को दोबारा से कैशे में लेके आना है और कैशे से फिर प्रोसेसर में लेके आना है। तो जो ज़्यादा यूज़ हो रहा हो इसको आप लोअर मेमोरी की तरफ ना लेके जाए, रैम में या सेकेंडरी मेमोरी की तरफ ना लेके जाए, भाई इसको प्रोसेसर के जितना करीब हो सके इसको लेके आए। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज या मोस्ट रिसेंटली यूज इसलिए यूज़ नहीं हो रहे हैं ज़्यादातर फीफो, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड और रैंडम मैकेनिज़्म। रैंडम मैकेनिज़्म क्या है कि रैंडम में कोई भी आपका जो ब्लॉक है उसको रिप्लेस कर दो जो नया आने वाला ब्लॉक है, ठीक है। तो दीज आर द रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज when the cache is full, which block should be replaced, okay. Then what are the cache writing mechanisms? आपके पास जब प्रोसेसर है, प्रोसेसर एक आपके पास कैशे है और एक आपके पास रैम है, तो रैम से डेटा होके कैशे में आ जाता है, कैशे से होके फिर प्रोसेसर्स की रजिस्टर्स को या प्रोसेसर्स को असाइन हो जाता है, ठीक है। व्हेन द प्रोसेसर एग्जीक्यूट इट्स रिज़ल्ट, जब प्रोसेसर स्टेटमेंट्स को या ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करता है तो फिर वो रिज़ल्ट जो है वो कैशे में डालेगा या रैम में डालेगा या रजिस्टर में डालेगा, ठीक है। तो वो रजिस्टर से डेटा किस तरह से राइट होगा कैशे में एज वेल एज इनटू द रैम, ठीक है। रैम में और कैशे में वो किस तरह से राइट हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं कैशे मैकेनिज्म, राइटिंग, कैशे राइटिंग मैकेनिज़म्स, ओके। सो राइट थ्रू क्या है? राइट थ्रू इज़ ईजियर टू इम्प्लीमेंट। ये क्या है कि जब भी प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर डेटा को एग्जीक्यूट करता है, ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, तो उसको राइट करेगा कैशे में भी एज वेल एज एट द जो भी मैप्ड रैम का जो भी हिस्सा मैप है कैशे के साथ इसमें भी राइट करेगा, ठीक है। इधर भी राइट करेगा एज वेल एज राइट इन द रैम। जब भी रिज़ल्ट कैलकुलेट होगा तो कैशे में भी राइट होगा और रैम में भी राइट होगा। दिस इज़ कॉल्ड द राइट थ्रू मैकेनिज़्म। दिस इज़ ईजियर टू इम्प्लीमेंट। आपके पास इम्प्लीमेंटेशन तो इसकी ईजी है। जब भी डेटा रिज़ल्ट आ रहा है इसको कैशे के ब्लॉक में भी रिप्लेस कर दो और रैम के ब्लॉक में भी रिप्लेस कर दो। क्यों दोनों जगह पे रिप्लेस कर दो? ताकि आपके पास जो है कंटेंट्स दोनों जगह पे सेम हो, सिंक्रोनाइज हो, डेटा सिंक्रोनाइज्ड हो दोनों जगहों पे, ठीक है। अगर सिंक्रोनाइज ना हो और किसी दूसरे प्रोसेस को इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो डेटा रैम से उठाएगा या कैशे से उठाएगा। अगर रैम से उठा दिया तो इट मीन्स दिस इज़ द ओल्ड डेटा। अगर कैशे से उठाया है तो क्या वो डेटा सही है या गलत है, ठीक है। वो उस तरह के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो राइट थ्रू में क्या है कि दोनों जगह पे रिप्लेस कर दो, दोनों जगह पे आपके कंटेंट्स भी सेम ही होंगे, ठीक है। लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक इसके ये है कि आपके पास एक्स्ट्रा जो ब्लॉक्स से फॉर एग्जांपल ब्लॉक नंबर 1 और 2 कैशे के, वो ब्लॉक नंबर 11 और 12 इसके साथ से फॉर एग्जांपल मैप है, ठीक है। तो अगर आपके पास ब्लॉक नंबर 1 में कोई चेंजेस नहीं आई,
ठीक है, सिर्फ ओनली ब्लॉक नंबर 2 में चेंजेस आई है, लेकिन वो राइट थ्रू में जो दोनों ब्लॉक्स इधर रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है, अपडेट हो रहे हैं, तो ब्लॉक नंबर 11 से फॉर एग्जांपल वो मैप है ब्लॉक नंबर 1 के, तो इट मींस 11 नंबर ब्लॉक में कोई चेंजेस नहीं आई, लेकिन फिर भी इसने राइट करनी है, ठीक है। तो राइट थ्रू में ये एक्स्ट्रा जो डिसएडवांटेज है कि जो ब्लॉक जो चेंज नहीं हुआ है उसको भी आपने राइट कर दिया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो कम्युनिकेशंस के प्रॉब्लम्स है या जो कम्युनिकेशंस के जो आपके पास ओवरहेड्स है वो आपके पास क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा जो है वो बर्डन आपके पास आ गया है, ठीक है। जो बैंडविड्थ है वो आपका ऑप्टिमल यूटिलाइज नहीं हो रहा बल्कि वेस्ट हो रहा है। राइट बैक में क्या है, राइट बैक में डर्टी बिट का कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज़ मीन बाय डर्टी बिट? डर्टी बिट मीन्स के इन ब्लॉक्स के साथ आपने एक डर्टी बिट बना दिया है। व्हाट इज़ मीन बाय डर्टी बिट? डर्टी बिट क्या है कि दिस विल वर्क जस्ट लाइक फ्लैग, ये एक फ्लैग की तरह काम करेगा। व्हेन द कंटेंट्स ऑफ दिस ब्लॉक चेंजेस, अगर इस ब्लॉक में चेंजेस आ गए तो ये क्या होगा, डर्टी बिट ऑन हो जाएगा कि ये ब्लॉक चेंज हुआ है। अगर डर्टी बिट में अगर ब्लॉक में चेंजेस नहीं आई तो डर्टी बिट चेंज नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल 0 मीन्स नो चेंजेस and 1 means changes occurred in that specific block. So this is called the dirty bit concept. तो राइट बैक में क्या है कि जिस ब्लॉक का डर्टी बिट जो है वो चेंज हो गया, मीन्स उस ब्लॉक को सिर्फ राइट कर दो, ठीक है, जो जिसमें चेंजेस आई है। बाकी ब्लॉक्स को क्या कर दो, उसको राइट ना करो, ठीक है। तो इससे क्या है कि इससे ये है कि आपके पास जो बैंडविड्थ है, ठीक है, या जो कम्युनिकेशंस के लिंक के थ्रू जो एक्स्ट्रा कम्युनिकेशंस हो रही थी, एक्स्ट्रा राइटिंग हो रही थी, उससे हम बच गए, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड राइट बैक कॉन्सेप्ट। सिर्फ उन ब्लॉक्स को क्या कर दो, राइट अप कर दो जो अपडेट हो गए हो, ठीक है। जो भी जिसमें चेंजेस आई हो, जिन ब्लॉक्स में चेंजेस नहीं आती, यू डोंट हैव टू राइट दोज ब्लॉक्स। ये हमारे पास थी कैशे के राइटिंग मैकेनिज़म्स के हवाले से कि कैशे को राइट किस तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है कैशे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के कौन कौन सी टेक्निक्स है, तो लेट्स सी दिस इक्वेशन कि आपके पास जो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम है कैशे का, दिस इज़ इक्वल टू हेड टाइम प्लस प्लस मेस रेट multiplied by mess penalty. Okay, so what is head time? The time taken to find that specific portion or that required data that is present in the cache. Okay, जो required data है प्रोसेसर के लिए, ठीक है, वो कैशे में मौजूद है, तो कितने टाइम में उसको क्या किया, फाइंड किया गया, दिस इज़ कॉल्ड द हिट टाइम, ठीक है। एक हमारे पास है मिस, तो मिस हमारे पास क्या है, व्हेन द डेटा इज़ नॉट प्रेजेंट इन द कैशे, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, एक उसके आपके पास है मिस रेट कि कितने रिक्वेस्ट में डेटा जो है वो कैशे में मौजूद नहीं था, मिस रेट। ओके, मिस रेट क्या है, 12 में से फॉर एग्जांपल आपके पास 6 जो है 6 मिसेस होगी, तो 50% मिस रेट है कि 12 रिक्वायर्ड पोर्शंस थे या 12 टाइम्स प्रोसेसर ने डिमांड की और उसमें से 6 डिमांड्स ऐसी थी जो जिनका डेटा कैशे में मौजूद नहीं था, तो इसको हम कहते हैं मिस रेट। तो मिस रेट क्या है, ये हमारे पास हो गया। और मिस पेनल्टी, तो अब अगर ये मिस हो गया तो इस डेटा को हमने लोड करना है कि कैशे में मौजूद नहीं है, तो इस डेटा को हमने लोड करना है रैम से या सेकेंडरी मेमोरी से, लोअर मेमोरी से इसको लोड करना है, ठीक है। तो उस प्रोसेसर ने रिक्वेस्ट किया कैशे को, डेटा कैशे में मौजूद नहीं है तो मिस हो गया, मिस रेट कितना है और मिस पेनल्टी। अब ये डेटा इसने आप या तो रैम से उठानी है या सेकेंडरी मेमोरी से उठानी है, तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा आपके पास टाइम लग रहा है वो हमारे पास क्या है, वो मिस पेनल्टी है कि मिस पेनल्टी कितनी है, अब कितना एक्स्ट्रा टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है इस डेटा को
कैशे में लेके आने के लिए, ठीक है, या प्रोसेसर को असाइन करने के लिए। तो ये हमारे पास एक्सेस मेमोरी, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम है टाइम प्लस मिस रेट मल्टीप्लाइड बाई मिस पेनल्टी। इसमें से किसी एक पैरामीटर को आपने क्या कर दिया, मिनिमाइज़ कर दिया, तो आपके एवरेज एक्सेस टाइम क्या होगी, एवरेज एक्सेस टाइम मिनिमाइज़ होगी। से फॉर एग्जांपल अगर आपने मिस रेट को कम कर दिया 50% की बजाय आप इसको 10% पे लेके आए, ठीक है, कि 10 रिक्वेस्ट में सिर्फ एक रिक्वेस्ट इस तरह है जो मिस हो गया है। या मिस पेनल्टी ये है कि आपने से फॉर एग्जांपल लेवल 1 कैशे में डेटा नहीं है तो लेवल 2 पे लेके, लेवल 2 में है कि नहीं, लेवल 3 में है कि नहीं, इस वजह से मिस पेनल्टी के लिए ये लेवल्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। रिड्यूसिंग द मिस रेट को कम करने के लिए आपके पास क्या है कि आपके पास ये 3 पैरामीटर्स है जिसके थ्रू आप मिस रेट को कम कर सकते हैं। एक हमारे पास क्या है, लार्ज ब्लॉक साइज़ और लार्ज कैशे साइज़। आपके पास से फॉर एग्ज़ाम्पल पहले कैशे में 8 ब्लॉक्स जो थे वो एकमोडेट हो रहे हैं, अब कैशे में जो है से फॉर एग्ज़ाम्पल 16 ब्लॉक एकमोडेट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो डेटा है आपने रैम से कुछ एक्स्ट्रा डेटा, आप फर्दर एक्स्ट्रा डेटा लेके आए किस में, कैशे में, ठीक है। तो आपने मिस रेट कम कर दिया। पहले 8 जो आपके पास ब्लॉक थे उसमें हमने मिस कैलकुलेट करनी थी कि उसमें डेटा है कि नहीं। तो ज़ाहिरी बात है जब आपके पास लेस एरिया हो उसमें से आप किसी चीज़ को फाइंड करते हैं तो उसमें लेस में चांसेस ज़्यादा है कि वो लेस एरिया में के डेटा आपके पास अवेलेबल ना हो। लेकिन अगर आपने साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया तो अब चांसेस ज़्यादा है कि डेटा आपके पास मिले, ठीक है। तो आपने मिस रेट को क्या कर दिया कि आप एक तो आप कैशे के साइज़ को बढ़ा दें, दूसरा आपके पास क्या है कि आप कैशे के सिंगल ब्लॉक की साइज़ को जो है वो इंक्रीज़ कर दें। से फॉर एग्जांपल पहले 8 बिट उसमें आ रहे थे, अब 16 बिट पर ब्लॉक जो है उसमें 16 बिट का डेटा आ रहा है, ठीक है। तो फर्दर आपने साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। जब आप साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो आपके पास मिस रेट की जो है वो रिड्यूस होता जाता है, ठीक है। और एक आप ब्लॉक के साइज़ को इंक्रीज़ कर दें, दूसरा आप कैशे के साइज़ को इंक्रीज़ कर दें, तीसरा आपके पास क्या है, हाइयर एसोसिएटिविटी। अगर आपके पास फुली एसोसिएटिव हो मैकेनिज़्म हो तो इट मीन्स कि आपने कैशे में कोई स्पेस खाली नहीं है, आप कैशे आपके पास फुल है, ठीक है। तो अब चांसेस ज़्यादा है कि इसमें डेटा हो, हिट हो, अगर आपके पास और मिस रेट क्या हो, कम हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास हाइयर एसोसिएटिविटी नहीं है, डायरेक्ट मैपिंग है, तो डायरेक्ट मैपिंग में आपके पास 1 लोकेशन पे से फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक पे डेटा तो आ गया है, ठीक है, लेकिन बाकी ब्लॉक्स आपके पास खाली है। तो अगर आप अब आपके पास चांसेस ये है कि आपके पास मिस रेट ज़्यादा हो। लेकिन अगर आपके पास एसोसिएटिविटी ज़्यादा है, हाइयर फुल एसोसिएटिव है, तो आपके पास कैशे फुल है, तो अब इसमें से चांसेस है, पहले एक ब्लॉक में आपने चेक करना था, अब जितना भी साइज़ है आप उसमें चेक कर रहे हैं। तो ज़्यादा अगर आपके पास डेटा अवेलेबल हो तो उसमें से चांसेस ज़्यादा है कि आपके मिस रेट जो है वो क्या हो, कम हो, ठीक है। मिस पेनल्टी क्या है कि आपने डेटा उठाना है लोअर मेमोरी से, उसके लिए क्या है कि आप कैशे के लेवल्स को बढ़ाएं। लेवल 1 लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, मीन 3 लेवल 3 कैशे, ठीक है। तो कौन सी लेवल पे है, अगर आपके पास लेवल 1 पे डेटा नहीं मिल रहा तो लेवल 2 पे आप दूसरे कैशे का लेवल 2 बनाओ, लेवल 3 बनाओ, मीन्स के अलग-अलग कैशे है। लेवल 1 पहले लेवल 1 था, तो अगर इधर फाइंड नहीं हुआ तो आपने डेटा फिर नीचे रैम से लेके आना था। तो अब अगर आपने सेकंड लेवल बना दिया है तो इट मीन्स कि आपके पास अगर लेवल 1 में नहीं मिल रही तो मे बी लेवल 2 में हो, लेवल 2 पे नहीं मिल रही तो मे बी लेवल 3 पे हो। तो मिस पेनल्टी को आप प्रिंसिपल आप लोकेलिटी के कॉन्सेप्ट के थ्रू आप मिस पेनल्टी को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। किस तरह से रिड्यूस करेंगे, बाय यूजिंग मल्टी लेवल कैश, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, रीड प्रायोरिटी ओवर राइट, कि आपके पास अगर
इससे पहले स्लाइड में हमने पढ़ लिया राइट थ्रू एंड राइट बैक, ठीक है, जो डर्टी बिट का कॉन्सेप्ट था। अगर आपने कैशे में राइट करनी है डेटा और आपके पास इसके बाद आपने इसको रैम में राइट करनी है, तो इन प्रोसेस को आप डिले करें। इनको क्या करें, डिले करें। प्रोसेसर को जो डेटा रिक्वायर्ड है रीड का, ठीक है, रीड का, वो पहले करें। अगर आपने पहले जो है सेविंग पे टाइम लगा दिया है, राइट पे टाइम लगा दिया है, ठीक है, तो जब प्रोसेसर को ये प्रोसेसर इसके बाद जब रीड करेगा तो ज़ाहिरी बात है जो राइटिंग का टाइम था वो भी वेस्ट हो रहा है ना। तो इस तरह से मिस पेनल्टी को रिड्यूस करने के लिए आपके पास क्या है, रीड की प्रायोरिटी दो ओवर राइट, जो कि जब राइटिंग को बाद में करो, रीडिंग की प्रायोरिटी पहले करो, कि जो डेटा रिक्वायर्ड है उसको पहले डेटा दो, उसके बाद राइटिंग करो, ठीक है। तो मिस पेनल्टी जो है वो क्या होगी, वो रिड्यूस होगी, वो रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पैरामीटर है हिट टाइम, तो हिट टाइम को अगर आपने रिड्यूस करना है तो वो क्या करें कि अवॉइडिंग एड्रेस ट्रांसलेशन, कि आप एड्रेस ट्रांसलेशन को क्या कर दें, अवॉइड कर दें, ठीक है। हिट टाइम आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, मींस कम से कम टाइम पे आपका जो है लगेगा कि आप डेटा को फाइंड करें। लेकिन अगर आपने एड्रेस ट्रांसलेशन पे टाइम लगानी है, पहले एड्रेस ट्रांसलेशन करें उसके बाद आपने हिट करनी है, तो इससे आपका जो है टाइम ज़्यादा पेर लेगा। तो रिड्यूसिंग हिट टाइम, अवॉइड एड्रेस ट्रांसलेशन, कि एड्रेस ट्रांसलेशन को आप क्या कर ले, इसको अवॉइड कर ले। तो दीज वर द मैकेनिज़म्स थ्रू विच यू कैन ऑप्टिमाइज़ और यू कैन एनहेंस और यू कैन इम्प्रूव द एक्सेस टाइम, एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ द कैश, ठीक है। तो होप आप लोगों को इधर तक समझ आ गया होगा। इसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक्स, कैश रिप्लेसमेंट टेक्निक्स, मैपिंग टेक्निक्स या एसोसिएटिविटी हमने पढ़ ली, राइटिंग के मैकेनिज़म्स पढ़ लिए और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो इसके साथ हम अपने लेक्चर को इधर ही जो है क्विट करते हैं। फिर भी अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट माई व्हाट्सएप नंबर और थ्रू माई ईमेल, ओके। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, जहाँ भी रहे खुश रहे, अल्लाह हाफ़िज़।